let's begin. So today we're going to start a new chapter. So today we're going to start a new chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics and thermochemistry. Thermodynamics and thermochemistry. Start करें. Now, this is a very theoretical chapter. इसमें बहुत सारे ऐसे terms आएंगे जो कि पहले मैं लिखवाऊंगा and after that I will explain. So अगर आपको कोई भी ऐसा term मिलता है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, then थोड़ा सा आप wait करो. आपको सारे के सारे terms जो है वो मैं एक एक करके explain करूंगा. Okay? So you don't have to worry about if any particular term you don't understand or if there is any particular term you are hearing for the first time. Okay? And this is a very theoretical chapter. तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे ही. Now, anyways, so we are starting thermodynamics and thermochemistry. Let's start with some definitions. Okay, the first definition that we have to understand is system. Okay, now system क्या होता है? Any region that is under observation. Any region that is under observation. That is under observation or study, okay, or it is any part of the universe. It is any part of the universe that is of interest. That is of interest. मैं आपको इसका मतलब एक मिनट में समझा रहा हूँ, पहले आप पूरा लिख लो. System, any region that is under observation or study. It is any part of the universe that is of interest. So, सबसे पहला definition was system. The next definition is surrounding. Surrounding. Now, surrounding क्या होता है? The region of universe apart from system is called as surrounding. Okay, यानी कि सिस्टम के अलावा जो भी है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं. Apart from system is called as surrounding. Okay, it is all of the region that is not system. शेडी कहाँ पर है? Study. It is all of the region that is not system. Okay, यानी कि सिस्टम के अलावा जो भी होता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं. And then we have universe. Okay, as simple as that. Universe is system. Universe is system plus surrounding. लिख लिया? लिख लो. सो यहाँ पे देखो, अब इन सब का मतलब क्या होता है, अब सुन लो, लिखते लिखते सुन लो. तो यहाँ पे इन सब का मतलब क्या होता है? सिस्टम इज एनी पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. ओके, सिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज रिक्वायर्ड और इट कैन बी एज बिग एज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम कैन बी अ बॉक्स, अ सिस्टम कैन बी अ रूम, अ सिस्टम कैन बी अ हाउस, a system can be a classroom or a school building or a city or a state or a country. Okay, a system can be anything depending on our requirement. एंड उस चीज के बाहर जो भी होता है, जैसे कि अगर सपोज करो हम अगर एक क्लासरूम को एक सिस्टम बोलते हैं, इफ वी से दैट अ क्लासरूम इज अ सिस्टम, देन एनीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग एल्स व्हिच इज आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम इज योर सराउंडिंग. ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आप सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिला दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा. जैसा नो, इज दैट क्लियर? सो इसी चीज को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, as whatever region is of interest, that is our system. Okay,
सिस्टम के बाहर जो भी चीज है, सिस्टम के बाहर जो भी चीज है दैट इज आवर सराउंडिंग, एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के यहाँ पे क्या बनाता है, इट मेक्स द यूनिवर्स। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो। ये तो छोटे मोटे डेफिनेशन है, ये तो ऐसा कुछ खास है नहीं जिसमें आपको ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत है। देख लिया? देख लिया? ध्यान दो अभी आप पहले सवाल पे ध्यान। डन? ओके। नाउ अब इसके अलावा देखो, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग 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 ऑन द interface or boundary, depending on the interface or boundary between system and surrounding, between system and surrounding, the system can be classified, the system can be classified into three categories, into three categories. Okay. Now the first one is open system. ना ओपन सिस्टम जैसे कि अगर आप एक क्लासरूम ले सकते हो, ओके। ना क्लासरूम में क्या होता है, अ स्टूडेंट कैन कम इन एंड अ स्टूडेंट कैन गो आउट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक क्लासरूम का टेम्परेचर जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। इफ यू टर्न ऑन द एसी और इफ यू टर्न ऑफ द एसी, तो आपका क्लासरूम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ओके। सो ओपन सिस्टम क्या होता है, इन एन ओपन सिस्टम मास as well as energy, can be exchanged, mass as well as energy can be exchanged with the surrounding, okay। हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक क्लासरूम के अंदर आए, ऑब्वियसली बाहर से अंदर आएगा, एंड हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम से बाहर जाए। सो हियर मास एज वेल एज एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड between the system and surrounding. So this is open system. Second is your closed system. Now closed system में क्या होता है कि only energy can be exchanged, only energy can be exchanged but not mass, ओके। जैसे कि अगर आप कोई भी एक बॉटल को क्लोज कर दो, अगर आप एक बॉटल को क्लोज कर दो तो इन दैट केस अब और मास तो चेंज होने वाला है नहीं। इन दैट केस सिर्फ वो बॉटल के अंदर का जो कंटेंट है वो या तो ठंडा या तो गर्म हो सकता है, राइट। सो इन दैट केस मास इज नॉट एक्सचेंज्ड, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। अब देखो ऑब्वियसली आप समझ गए हो, तो थर्ड कैटेगरी क्या होगा बताओ। The third one is your isolated system. Isolated system में क्या होगा बताओ, okay। Isolated system में neither mass nor energy can be exchanged. कॉपी कर लो। Is that clear to everyone? Is that clear? Okay. Now obviously इसके देखो हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक आई सेड द सिस्टम कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग, ओके। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वेरी वेरी सिंपल, ओपन सिस्टम के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल एक बस हो सकता है, यस नो, द एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम कैन बी अ बस, इट कैन बी अ क्लासरूम, और देयर कैन बी 1000 अदर एग्जाम्पल्स, राइट। सिमिलरली एक क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अ बॉटल दैट इज क्लोज्ड रूम तो नहीं, मतलब इतना भी नहीं कि सफोकेशन ही हो जाए। सो इट कैन बी अ बॉटल दैट इज स्टॉपर्ड, ओके, अ स्टॉपर्ड बॉटल। अगर आपने एक बॉटल को क्लोज कर दिया तब तो उसमें से और मास चेंज होने वाला है नहीं। एंड आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा, टिपिकली देखो इसका एग्जाम्पल जो है वो एक थर्मस होना चाहिए, करेक्ट।
थर्मस होना चाहिए, बट थर्मस जो है ना वो एक आइडियल एग्जाम्पल होता है। ओके, थर्मस जो है दैट इज बेसिकली एन आइडियल एग्जाम्पल। नाउ व्हाई डू आई से आइडियल एग्जाम्पल, क्योंकि देखो वैसे तो हमें पता है कि एक थर्मस जो है वो गर्म चीजों को गर्म रखता है या ठंडे को ठंडा रखता है, बट वहीं पे अगर आप थर्मस को लेट्स से 1 ईयर के लिए रख देते हो, या 1 ईयर छोड़ो, आप अगर थर्मस को 5 दिन के लिए भी रख दोगे, तो क्या वही गर्म चीज गर्म रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, राइट? सो थर्मस, हालांकि अ थर्मस इज सपोज टू बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंड दैट इज करेक्ट, बट उसके लिए वो थर्मस जो है वो आइडियल होना चाहिए। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हर थर्मस में थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होता ही होता है। ओके, आइडियली यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, बट प्रैक्टिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ, practically it is an example of, correct, practically it is an example of closed system. तो yes, thermos is an example, बस आप ध्यान में रखो कि कई बार जो है this is not a very good example, just something to keep in mind. Okay, now इसके अलावा the best example of an isolated system is the universe. Okay, the best example of an isolated system is the universe. कभी भी आपको दिया जाए which is a perfectly isolated system, and this is a very common question, which is a perfectly isolated system, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा होना चाहिए यूनिवर्स। ओके, क्योंकि अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग मिला के यूनिवर्स है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है, और अगर यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है तो वो एक्सचेंज किसके साथ करेगा? इज दैट क्लियर? सो कभी भी अगर आपको पूछा जाए which is the example, which is the example of a perfectly isolated system, of a perfectly isolated system. Okay, तो इसका बेस्ट आंसर जो है that will always be universe. okay, which के लिए यहाँ पे बहुत कर लेते हैं, कॉपी कर लो। अच्छा, थर्मस, थर्मस के अंदर का अगर कंटेंट ठंडा है तो वो तो आप रूम टेम्परेचर से कंपेयर कर रहे हो ना। वी आर अज्यूमिंग कि अच्छा उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर है। आप अगर एक थर्मस को ले जाके एक कोल्ड कंट्री में रखोगे तब तो ऑब्वियसली वो और भी ठंडा होगा, या अगर एक वार्म कंट्री में रखोगे तो वो और भी वार्म होगा। ठीक, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, करेक्ट, परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। एवरीथिंग, सी ना, वैसे तो कुछ भी आइडियल नहीं है, ऐसे तो आइडियल गैस भी नहीं है। सो ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग, द यूनिवर्स इज द ओनली परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। बट ऑब्वियसली हम इन थ्योरी आपको काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस मिलेंगे कि आपको बोला जाएगा कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो ऑब्वियसली देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? डन। ओके, नाउ अब देखो, हम सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड टू डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट डू वी मीन बाय अंडरस्टैंड और डिफाइन अ सिस्टम? वेरी सिंपल, अगर मैं किसी भी एक इंसान को डिस्क्राइब करना चाहिए, इफ आई वांट टू डिस्क्राइब अ पर्सन, ओके, सो व्हाट ऑल फैक्टर्स कैन आई यूज? आप खुद एग्जांपल दो मुझे, व्हाट ऑल फैक्टर्स कैन यू यूज टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड? कि भाई अगर आपको आपका फ्रेंड डिस्क्राइब करना है तो आप मुझे कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप मे बी हाइट से डिस्क्राइब करोगे, ओके, आप मे बी वेट से डिस्क्राइब करोगे, you can also use hair, you can also use complexion. So there are many things. Of course you can also describe using his mental state. Anyways, so there are many ways, or there are many variables that you can use to describe a person. Okay, and जो variable आप एक person को describe करने के लिए use कर रहे हो, वही same variables आप दूसरे person के लिए भी use कर सकते हो। yes or no? Okay, so there are many variables. Okay, so there are variables or functions that we use to describe a situation, to describe a system, okay. Now some variables or some functions are called as intrinsic functions, intrinsic or intensive functions, okay. And there are some functions or some variables which are called as extrinsic और एक्सटेंसिव वेरिएबल। ना पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर आप मुझे एग्जांपल देना। इंट्रिंसिक या इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, या इंट्रिंसिक या इंटेंसिव फंक्शन क्या होता है? वेरिएबल और फंक्शन आर एग्जैक्टली द सेम थिंग।
and intrinsic and intensive are exactly the same thing. Function क्या होता है? These do not depend on quantity or amount. Okay, these do not depend on quantity or amount. Okay, amount का मतलब यहाँ पे या तो weight हो सकता है या तो moles हो सकता है. Okay, so similarly just like I said कि the things that you can use to describe a person, इसमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल होगा which does not depend on the weight of the person? Okay, चलो ठीक है, very good. You can say body temperature. Body temperature does not depend on the weight of the person. What other qualities do not depend on the mass of the person? Maybe eye color. ठीक है, eye color does not depend. चलो, very good. Behavior. Okay, so there are many quantities which do not depend on the mass or on the quantity. Okay, now similarly extrinsic या extensive variable या function क्या होता है? These are quantities which obviously depend on mass. जहां पे हमारा intrinsic था which do not depend, तो extrinsic function क्या आ जाएगा? Obviously these will depend on mass or quantity. These depend on quantity or amount. Okay, these depend on quantity or amount. Amount में यहाँ पे या तो आप weight बोल सकते हो, okay, या तो आप moles बोल सकते हो. Okay, now before we take examples, अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज क्या समझना है. In case of thermodynamics, हालांकि again like I said, system हम कुछ भी ले सकते हैं. We can take anything as a system, but in case of thermodynamics, we always take ideal gas in a container. Ideal gas in a container as a system. Okay, तो अगर आपके पास एक गैस है तो उसके लिए आप क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हो बताओ. If you have a gas, then what all variables do we use? Correct, we use pressure, we use volume, we use moles, we use temperature, velocity, density, maybe refractive index and many other things. Yes or no? Okay, so अगर मैं यहाँ पे चलो कुछ quantities यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ. Pressure, volume, moles, weight, molar mass, okay, temperature, color, refractive index, RI is refractive index, okay, density, etc. Okay, चलो एक बार के लिए हम इतना ही देखते हैं. Okay, ना अब आप मुझे एक एक करके बताते जाओ कि कौन सा इंट्रिंसिक है, कौन सा एक्सट्रिंसिक है. ओके, एंड बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इससे पहले कि आप डिफाइन करना स्टार्ट करो, आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो, ओके, कि आई हैव दिस एंटायर बॉक्स फिल्ड विथ व्हाटएवर आइडियल गैस. ओके, तो इस बॉक्स का एंटायर, okay, for the entire box, okay, I may have some volume, some value of pressure, some value of volume, some value of temperature, moles, weight, density, refractive index, etc. Okay, and then मैं इसको एक imaginary partition से divide कर रहा हूँ. Okay, I am dividing it with an imaginary partition, and let's say this is A half and this is B half. तो अब A half में, okay, ए हाफ में कुछ भी एक प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, मोल्स होगा, वेट होगा, एक्सेट्रा. ओके, सो वी आर कंपेयरिंग द एंटायर का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स with any particular half का pressure, volume, temperature and moles. Okay, and we are using an imaginary partition here. बेसिकली आप इमेजिन करो कि भाई अगर आपने एक रूम में, अगर आपने अपने रूम में एक इमेजिनरी पार्टीशन लगाया है, तो नाउ यू आर कंपेयरिंग हाफ विद द एंटायर. ओके, तो सबसे पहले चलो हम एक इजी वाले से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर. तो क्या टेम्परेचर यहाँ पे क्वांटिटी से डिपेंड करेगा बताओ. इफ वी इमेजिनरीली डिवाइड योर रूम इनटू टू हाफ्स, तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा? ओके, टेम्परेचर ऑब्वियसली डज नॉट चेंज, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम. सो मेरा टेम्परेचर कौन सा क्वांटिटी आ जाएगा बताओ, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? करेक्ट, मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरा इंट्रिंसिक में आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना? ओके, सो द फर्स्ट वन वाज अ सिंपल वन. Now, the next one is going to be very obvious. अगर मैं वॉल्यूम लूं तो वो किस में आ जाएगा? Obviously वॉल्यूम एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा. Okay, obviously वॉल्यूम would be extrinsic. Okay, now next one, let's take obviously moles. moles वाला भी काफी obvious है. moles वाला क्या आ जाएगा बताओ? moles वाला भी extrinsic आ जाएगा. Okay, weight is also pretty obvious. weight भी क्या आ जाएगा? weight भी extrinsic में आ जाएगा. Okay,
मॉलिक्यूलर मास किस में आएगा? मॉलिक्यूलर मास, देखो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे समझो कि सपोज करो अगर आपने 5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर लिया है एंड अगर आपने 10 किलोग्राम्स ऑफ वाटर लिया है, 5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर एंड 10 किलोग्राम्स ऑफ वाटर, तो जो 5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 होगा। जो आपने 10 किलोग्राम्स ऑफ वाटर लिया है उसका भी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 ही होगा। तो क्या वो क्वांटिटी पे डिपेंड किया? obviously did not depend on quantity or amount. Okay, so again मेरा molecular mass भी क्या आ जाएगा? molecular mass मेरा intrinsic में आ जाएगा. Okay, then let's see color. Okay, क्या कलर किस चीज पे डिपेंड करेगा? कलर डज इट डिपेंड ऑन क्वांटिटी? ऑब्वियसली कलर डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, सो कलर आपका इंट्रिंसिक में आ जाएगा. ओके, लेट्स और क्या क्या बच गया? मोल्स हो गया, वेट हो गया, डेंसिटी. ओके, सेम चीज, अगर आप 5 किलोग्राम ऑफ वाटर ले रहे हो तो उसका डेंसिटी कितना होता है? करेक्ट, उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा. ओके, 5 किलोग्राम ऑफ वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. एंड अगर आप 10 किलोग्राम ऑफ वाटर ले रहे हो तो भी उसका डेंसिटी कितना आएगा? करेक्ट, 1 ग्राम पर ml ही आएगा. राइट, सो डेंसिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी. सो मेरा डेंसिटी भी क्या आ गया? इंट्रिंसिक में आ गया. नाउ लेट्स सी प्रेशर. आपके कमरे का प्रेशर वर्सेस द एंटायर घर के अंदर जो प्रेशर है, सेम है या अलग अलग है? बताओ. तो हमारे कमरे के अंदर का प्रेशर कितना है? 1 atm है. और तुम्हारे पूरे घर का भी, घर के अंदर भी एयर प्रेशर कितना है? 1 atm है. ये सुनो. ओके, सो प्रेशर भी क्या आ जाएगा? प्रेशर भी मेरा इंट्रिंसिक फंक्शन आ जाएगा. ओके, what are the quantities are there? यहाँ पर तो हमने सारे क्वांटिटीज कवर कर लिए. ओके, लेट्स टेक मे बी वन मोर. लेट्स टेक, सपोज करो मोलारिटी. ओके, मोलारिटी. तो मोलारिटी बताओ, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली इंट्रिंसिक. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली इंट्रिंसिक आएगा. मोलारिटी क्या आएगा बताओ? अगर मैं 10 अगर मैं 10 लीटर ऑफ 1 मोलर लू एंड अगर मैं 20 लीटर ऑफ 1 मोलर लू, दोनों का मोलारिटी सेम होगा या अलग अलग हुआ? मोलारिटी तो सेम ही हुआ. यस नो? मोलारिटी थोड़ा ना क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. यस नो? देखो, अगर आप कोई भी क्वांटिटी को वॉल्यूम से डिवाइड कर चुके हो या अगर आप कोई भी क्वांटिटी में आपने डिनोमिनेटर स्पेसिफाई कर दिया है, कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि आपका डेंसिटी हुआ, डेंसिटी क्या होता है? ग्राम पर ml होता है. ओके, सो इन दैट केस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड आवर वॉल्यूम. तो अब आप चाहे उसका 50 ml लो, चाहे उसका 100 ml लो, इट डज नॉट मैटर. ओके, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो चीज आपका उतना ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगा. तो अगर मैंने 1 मोलर सोल्यूशन लिया है तो चाहे मैं उसका 5 लीटर लू, चाहे मैं उसका 50 लीटर लू, बात तो वही रहेगा ना. कैसा नो? वी कैन हैव, आज चलो आप इसको ऐसे समझो, जो आपका पीएच है. ओके, जो आपका पीएच है, चाहे आप 5 लीटर ऑफ वाटर लो, चाहे आप 50 लीटर ऑफ वाटर लो, क्या पीएच चेंज होगा? पीएच तो वही रहेगा ना. ये सुनो. ओके, पीएच तो सेम ही रहेगा. सो मोलारिटी हो गया या जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, all of those are intrinsic properties. Okay, whenever we have specifically defined कि अच्छा इतने क्वांटिटी के लिए, जैसे कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया. ओके, नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नो? अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बोलते हो, दैट इज ऑलवेज फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी. सो जो भी चीज एक फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए होता है, that is always an intrinsic function. Is that clear? Okay, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ all concentration terms etc. Okay, obviously there can be many other examples, but these are the common ones. देख लो. अच्छा, इसके अलावा अभी ये कुछ टर्म्स में लिख रहा हूँ जो कि आपने नहीं पढ़ा है, ये हम आगे लिखेंगे. U, H, G, S एक्सेट्रा, ये टर्म्स आपने नहीं पढ़े हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. नोट कर लिया? Okay, now so variables or functions intrinsic and extrinsic are dependent on quantity or not dependent on quantity. उसी की तरह से हम
और भी दो क्वांटिटीज या दो तरीके का क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं. वन इज योर पाथ फंक्शन, one is your path function or your path variable, and the other, copy कर लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. One is your path function or your path variable, and the other is your state function, okay, और state variable. आप चाहे तो इसको टेबल वाइज भी लिख सकते हो, entirely up to you, doesn't matter, okay. Now एक path function या path variable क्या होता है? Its value depends on path taken. कहाँ पे भाई? G, this is G, UHGS, U. Now path function or path variable, its value depends on path taken. State function या state variable क्या होता है? State function या state variable क्या होता है? its value only depends on initial and final state. It does not depend on path taken. ठीक है, पहले चलो हम पूरा लिख ही लेते हैं. It is an inexact differential. It is an inexact differential. It is an exact differential. मतलब क्या होता है वो हम अभी समझेंगे, पहले आप लिख लो. फिर इसके अलावा देखो और इसमें क्या क्या होता है. इन दिस केस f x एक सेकंड देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, d by dy of df by dx not equal to d by dx df by dy. यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं d by dy of d by dx. f is equal to d by dx d by. देख लो, आप लोगों ने फिजिक्स पर डिफरेंशियल तो कवर किया ही है. मैथ्स में भी कर लिया, वेरी गुड. फिर इसी को हम और कैसे लिखते हैं? जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. जनरली ना, f इज एनी फंक्शन. f इज एनी फंक्शन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, f ऑफ x. ओके, सो f इज एनी फंक्शन. अब ये चीज एग्जैक्टली डिफरेंशियल तो नहीं है, बट ये आप यूज कर सकते हो. जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, ये वाला डेल्टा यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. ओके, दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ये रूल कई बार काम आ जाता है. ओके, ये आप एक्चुअल एग्जाम में कभी भी नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर योर एग्जाम. ओके, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज Q, that is heat, and W, that is work. Okay, and इसका most common example is U, H, S, G, P, P, etc.
ओके, ये वही UHSG जो कि हमने ऊपर लिखा था। अब ये जो है ये मैं दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूं, सम ऑफ टू एग्जैक्ट differential, sum of two exact differential is an exact differential। ये मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं। ओके, sum of two inexact differential can be an exact differential। दो एग्जैक्ट मिला के एग्जैक्ट ही बनाते हैं, बट दो इन एग्जैक्ट मिला के एग्जैक्ट बना सकते हैं। हो भी सकता है बने, हो भी सकता है नहीं बने। ओके, एंड इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, दैट इज इस चीज का मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टू इन एग्जैक्ट, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, मैंने टू डेल्टा लिखा है ना, डेल्टा लिखा है, तो डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इन एग्जैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। okay? तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो इन एग्जैक्ट है, वो सेकंड वाला। इसका देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू द मोस्ट सिंपल एग्जांपल। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है, इसका मोस्ट सिंपल एग्जांपल देखो क्या होगा। यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया। इसका मोस्ट सिंपल एग्जांपल क्या होगा, सपोज करो आप स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हो। ओके, एंड देयर आर थ्री पॉसिबल पाथ्स। लेट्स से दिस इज पाथ 1, लेट्स से दैट दिस इज पाथ 2, एंड लेट्स से दैट दिस इज पाथ 3। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर सपोज करो मेरा वेरिएबल जो है, लेट्स से दैट इज डिस्टेंस। ओके, लेट्स से मेरा वेरिएबल जो है वो डिस्टेंस है, तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, क्या बताओ तीनों पाथ का डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा क्या? अगर मैं इन तीनों पाथ को, अगर मैं अलग अलग पाथ लेता हूं, तो इन तीनों केस में मेरा डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। ठीक है, इन दैट केस अगर मैं पाथ 1 लेता हूं तो मेरा डिस्टेंस का कुछ एक वैल्यू आएगा, पाथ 2 लेता हूं तो मेरा डिस्टेंस का कुछ और वैल्यू आएगा, एंड अगर पाथ 3 लेता हूं तो ऑब्वियसली अगेन डिस्टेंस का कुछ और वैल्यू आएगा। यानी कि डिस्टेंस हियर इज अ पाथ फंक्शन, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पाथ दैट वाज टेकन। क्या ये समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिकम्स अ पाथ फंक्शन। ओके, बट अगर यहीं पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बोलूं, ओके, यहीं पे अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बोलूं, तो चाहे मैं पाथ 1 लू, पाथ 2 लू या पाथ 3 लू, डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट तो सेम आएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। क्या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। समझ में आ रहा है? Okay, so this is the difference between a path function and a state function. Path function is dependent on path, state function is only dependent on initial and final state. समझ में आया? Okay, now obviously there are many more examples of path function and state function, इस पे हम आएंगे, don't worry about it, we'll come to that later. But अभी के लिए I hope at least आपको path function and state function का मतलब समझ में आ गया होगा। Okay, path function obviously depends on path taken, state function only depends on initial and final state। Okay, now यहाँ तक complete करेगा। Okay, so now we are going to start with some more important parts।
नाउ द फर्स्ट पार्ट हियर, अब ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चीज चलो आप मुझे बताओ. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन योर ओन वर्ड्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हो सकता है कि आपने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, बट आपने इसको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से पढ़ा होगा. ओके, या एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से पढ़ा होगा. व्हाट डज दैट स्टेट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और योर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बताओ ये क्या है? Correct, energy conservation law. What this basically states is that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. Okay, so first law of thermodynamics, कई बार आप इसको short में as FLOT देखोगे. Okay, many times you will see this in books as FLOT. Just something to keep in mind. Okay. So first law of thermodynamics or the energy conservation law, what does this state is that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. नोट कर लिया? Okay, now let's take a very simple example. Let's say आपने whatever इस ऑब्जेक्ट पे, okay, आपने इस ऑब्जेक्ट पे कुछ भी x amount of work किया है. Okay, whatever x amount of work you have done. So and let's say कि x amount of work करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी जो है, that has increased by 50 joule. इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी हैज इंक्रीज्ड बाय 50 जूल. तो आपका एनर्जी कितने से डिक्रीज हुआ होगा बताओ? ऑब्वियसली आपका एनर्जी जो है वो 50 जूल से डिक्रीज किया होगा. ये चीज हम कैसे निकाल पाए? बिकॉज एनर्जी इज कॉन्जर्व, एज सिंपल एज दैट. एनर्जी इज कॉन्जर्व. अगर इस ऑब्जेक्ट ने 50 गेन किया है तो नेचुरली किसी और ऑब्जेक्ट ने 50 लूज किया होगा. यस और नो? ओके, और वी कैन ऑल्सो स्लाइटली चेंज दिस एग्जाम्पल कि अच्छा ठीक है, सपोज करो कि दो लोगों ने मिलके इस ऑब्जेक्ट पे काम किया. अगेन द टोटल एनर्जी गेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट वाज 50. Now, अब तो मैं इंडिविजुअल तो नहीं निकाल सकता. फॉर दैट आई कैन नॉट फाइंड आउट. हो सकता है कि ये आदमी ज्यादा काम करता हो. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 25 का डिवीजन आएगा. ओके, बट एटलीस्ट व्हाट वी नो इज दैट इन दोनों का चेंज मिला के जो है वो 50 आएगा. यस और नो? एटलीस्ट दिस पार्ट वी कैन फाइंड आउट कि अच्छा ठीक है, इन दोनों का मिला के जो है वो 50 आएगा. ओके, एंड लेट्स से कि इस पर्सन का एनर्जी का डिक्रीज वाज 30, तो नेचुरली फिर इस पर्सन ने कितना लगाया होगा? इस पर्सन ने फिर 20 लगाया होगा. यस और नो? सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली आवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस में एक्स अमाउंट से इंक्रीज हुआ है तो वो डेफिनेटली किसी और अमाउंट से एक्स अमाउंट जो है वो डिक्रीज हुआ. इज दैट क्लियर? Okay, now this is obviously the case where someone has done work on the box. Of course आप इस चीज का रिवर्स भी समझ सकते हो. Okay, समझ सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर वेरी टायर्ड एंड आपके घर वाले आपको लेट्स से ग्लूकोज ला के दे रहे हैं. ओके, एंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट यू हैव इट कंटेन्स लेट्स से 20 जूल ऑफ एनर्जी. ओके, एंड अगर आपने पूरा का पूरा ग्लूकोज खा लिया देन योर एनर्जी विल इंक्रीज बाय, ऑब्वियसली योर एनर्जी विल इंक्रीज बाय 20. यस और नो? तो बेसिकली यहाँ पे ये जितना भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था उसने पूरा का पूरा आपको दे दिया. अगेन एनर्जी इज कंजर्व्ड. जितना यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर ऐड होगा. यस और नो? सो दिस इज बेसिकली योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि आप एनर्जी जो है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ व्हाई डिड आई एक्चुअली गो थ्रू दिस एग्जांपल? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा इक्वेशन आता है, फर्स्ट लॉ, जब भी मैं आपको फर्स्ट लॉ बोलूं उसका हमेशा मतलब ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा. First law of thermodynamics is always written as delta U is equal to Q plus W. Now, ध्यान दो यहाँ पे डेल्टा U, Q और W इन सभी का मतलब क्या होता है?
Delta U is basically our change in internal energy. Change in internal energy. Q, ध्यान दो, Q is heat provided. Q is heat provided. And W, this is very important, W is work done by the system. Work done by the system. पहले आप ये पूरा लिख लो. पहले आप लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. लिख ले. Now taking a very simple example, अगर सपोज करो कि let's say you have eaten some food, ठीक है, let's say कि आपने अपना ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है. So when you had your breakfast, did your energy increase or decrease? Ideally क्या होना चाहिए? Obviously इसके बाद तो आपको नींद आ रहा होगा, but ideally when you consume breakfast, so in that case आपका energy क्या होता है? Increase होता है, right? So through some method energy was given to you, right? So आपका internal energy जो है, in that case did it increase or decrease? आपका internal energy जो है, when you ate some food or when you had your breakfast, तो आपका internal energy increase हुआ, right? Now अब अगर मैं आपसे 3 घंटे होमवर्क करवाऊं, ठीक है, या अगर मैं आपसे 3 घंटे स्टेज भी करवाऊं, तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? राइट, डिक्रीज होगा. सो व्हेन अ सिस्टम, ओके, अज्यूमिंग दैट यू हियर आर द सिस्टम, ओके, अज्यूमिंग कि आप यहाँ पे सिस्टम हो, तो जब आपको एनर्जी मिलता है, ओके, व्हेन यू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, okay, in that case your internal energy increases. But when you do work, okay, जब आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि जब आप वॉक पे जा रहे हो, आप रनिंग पे जा रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या अगर आप होमवर्क कर रहे हो, सो इन दैट केस योर इंटरनल एनर्जी विल, करेक्ट, योर इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज. समझ में आ रहा है ना सभी को? ओके, सो यहां पर देखो जो टर्म लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्रोवाइडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. तो हीट अगर प्रोवाइड हो रहा है तो इसका डेल्टा यू क्या होना चाहिए बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? करेक्ट, डेल्टा यू इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन अगर मेरा सिस्टम काम कर रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या करना चाहिए बताओ? करेक्ट, उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज एनीथिंग इन इज पॉजिटिव, एनीथिंग आउट इज नेगेटिव. ओके, अगर आपको पैसे मिलते रहे तब तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आपको खर्च करना पड़े तो सबको दुख होता है. Yes or no? So money in is always good, money out is always sad. So in case of thermodynamics, the currency is energy. So energy in is positive, energy out is negative. As simple as that. Anything आप ये चीज याद रखो. Anything in is positive, anything out is negative. From the perspective of this system, okay, from the perspective of the system, अगर आप आइसक्रीम खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए तो पैसे आउट हुआ, आपके लिए तो पैसे आउट हुआ, लेकिन उस आइसक्रीम वाले के लिए पैसे क्या हो गए? इन हो गए ना. ओके, सो इट इज ऑलवेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड नॉट द सराउंडिंग. आप हमेशा सिस्टम के हिसाब से सोचते हो. सो सिस्टम के हिसाब से एनीथिंग इन इज पॉजिटिव, सिस्टम के हिसाब से एनीथिंग आउट इज नेगेटिव. तो जब आप वर्क कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, ओके, व्हेन यू आर डूइंग वर्क ऑन सम ऑब्जेक्ट, तो सिस्टम का एनर्जी क्या होना चाहिए बताओ? करेक्ट, नेगेटिव होना चाहिए. सो व्हेनेवर द सिस्टम इज डूइंग वर्क, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी को समझ में आया? नाउ आई पुट इन सो मच एफर्ट इन दिस ईयर ताकि आपको आगे का एग्जांपल जो है वो समझ में आएगा. एनीवेज, नाउ ध्यान दो, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अभी हम इसको ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे. लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स. ओके, लेट्स से कि लेट्स से a system, let's say P, a system P gained 50 joule of energy in the form of heat, in the form of heat, and did 20 joule of work. Okay, and did 20 joule of work. What is the value of delta U? Okay, what is the value of delta U?
नाउ इन दैट केस आपको हमेशा क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना पड़ेगा आपको क्या चीज पॉजिटिव लेना है, क्या चीज आपको नेगेटिव लेना है. इट मे नॉट ऑलवेज बी दैट ऑब्वियस. ओके, तो यहाँ पर देखो इट्स वेरी सिंपल. सो आप हमेशा फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करोगे. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, नाउ क्लियरली क्वेश्चन के लैंग्वेज से मुझे क्या बोला है, सिस्टम की गेन 50 जूल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो यानी कि मेरा क्यू का वैल्यू क्या हो गया बताओ, क्यू का वैल्यू हो गया प्लस 50. यस और नो? ओके, साइन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्मोडायनेमिक्स में साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका आंसर +10 आ रहा है लेकिन अगर आंसर -10 है तो आपका गलत हो जाएगा. ओके, सो इन दैट केस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सो यहाँ पे ऑब्वियसली क्यू का वैल्यू जो है वो +50 हो जाएगा. नाउ अब अगर पी जो है वो 20 जूल ऑफ वर्क कर रहा है तो उसका एनर्जी का क्या हुआ, उसका एनर्जी का तो लॉस हुआ ना, राइट. सो इट विल बिकम -20. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, और अगर यहाँ पे डिड के जगह अगर रिसीव्ड होता एंड रिसीव्ड 20 जूल ऑफ वर्क, सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस इट वुड हैव बीन +20. क्या ये आप सभी को समझ में आया? Okay, so in this case, in this particular question, it is doing work, so इसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा. So finally मेरा डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ गया, +30 आ गया. अब +30 जूल ऑब्वियसली. Is that clear to everyone? Okay, so you always have to be careful. You always have to be careful कि अच्छा मुझे यहाँ पे एनर्जी का साइन क्या डालना चाहिए. ओके, एंड दी बेस्ट एंड दी इजीएस्ट वे वुड बी कि आप अपने आप को सिस्टम इमेजिन करो. ओके, या आप हमेशा सिस्टम के पर्सपेक्टिव से ही सोचो कि सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है या सिस्टम एनर्जी दे रहा है. ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड. ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि अगर आपसे काम करवाया जाए तो आपका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? करेक्ट, नेगेटिव होगा. सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. ध्यान दो, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके, ये मेरा आ जाएगा पॉजिटिव. ओके, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इफ आई एम स्पेंडिंग एनर्जी then obviously somebody has to gain energy. Yes or no? And if here I am doing the work, if work is being done by me, then आप पे काम हो रहा है. Okay, work is being done on you. Yes or no? समझ में आया सभी को? ओके, सो आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है. जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो सिस्टम के हिसाब से वर्क का वैल्यू नेगेटिव होता है. जब सिस्टम पे काम होता है तो सिस्टम के हिसाब से वो चीज पॉजिटिव होती है. ओके, इसको फटाफट नोट कर लो. इज इट क्लियर? रिसीव वर्क कैसे होगा? वेरी सिंपली, इफ आई एम डूइंग वर्क, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका नॉलेज क्या हो रहा है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है. जो लोग सुन रहे हैं उनका तो इंक्रीज हो ही रहा है. इज दैट क्लियर? Okay, now again, like I said, a system can be anything. A system is not necessarily a person. A system can be a box, it can be ideal gas, it can be something. Okay, so if a person is doing some work on the box, so naturally उस box को तो energy मिल रहा होगा. Now let's take another simple example. Okay. Let's take another simple example. So let's say a system is provided 60 joule of heat energy. 60 joule of heat energy. It works spending 40 joule of energy. Okay, and it further loses 5 joule of energy. It further loses 5 joule of energy in the form of heat. In the form of heat. Okay, find delta U. मैथ्स खराब हो गई है क्या तुम्हारी? Okay,
ना हम इसी चीज पे चलो कंटिन्यू करते हैं. ओके, इसी ओके ना इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं. मैं इसी चीज में एक और ऐड कर रहा हूँ. इफ यू इनिशियल, ओके, डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है. ओके, डेल्टा इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. Now, if U initial was, let's say, for example, 90 joule, find U final. Okay, तो यहाँ पे आपको दो चीजें निकालना है. देखो, चेक करते हैं. वेरी सिंपल. हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है. फर्स्ट लॉ मुझे क्या बोलता है? अच्छा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. एज सिंपल एज दैट. So delta U is equal to, now Q is basically sum of all the heats provided, released, etc. So मैंने प्रोवाइड कितना किया? मैंने 60 प्रोवाइड किया, तो ये आ जाएगा प्लस 60. ठीक है. अब सिस्टम ने लूज कितना किया? उसने 5 अमाउंट लूज किया, तो यहाँ पे हो जाएगा -5. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके. एंड देन इट हैज डन सम वर्क. तो यहाँ पे मुझे एनर्जी को क्या लिखना चाहिए बताओ? आई शुड राइट इट एज -40. ओके. सो अब देखो, ये मेरा डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ गया? +15 आ गया. ओके. नाउ वेरी सिंपली डेल्टा यू इज वेरी सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. बाकी का भी आप कंप्लीट कर सकते हो. सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू 15. यू इनिशियल का वैल्यू मैंने आपको दिया है 90. दिस इज 90. सो ऑब्वियसली मेरा यू फाइनल कितना रहेगा? 105. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत डिफिकल्ट था क्या? बहुत डिफिकल्ट था? कंप्लीट कर लो. आगे बढ़े. ओके, लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल. सर, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल करवा रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज फर्स्ट लॉ. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से कि U final was equal to some random value 250 joule. Let's say U initial was also some random value of, let's say, 160 joule. Okay, work done by the system is equal to some random value 150 joule. Okay, find Q. Okay, also mention if heat was provided or released. Right. Heat was provided or released. एक कैलकुलेशन चेक करो. शायद कैलकुलेशन हो गया. कैलकुलेशन चेक करो. Right, this is very simple. Again, same चीज आप फर्स्ट लॉ यूज करोगे. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, तो आप पहले इसका वैल्यू निकाल लो, बाद में हम साइन से देखेंगे कि अच्छा प्रोवाइड हो रहा है या रिलीज हो रहा है. सो डेल्टा यू इज 250 माइनस 160 विच इज इक्वल टू क्यू. वर्क मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस या प्लस बताओ? वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? -150 आ जाएगा. ओके, सो दिस इज 90. ये चीज जो है इससे हट जाएगा. सो मेरा क्यू का वैल्यू क्या है? क्यू का वैल्यू इज +240. ओके, एंड मैंने आपको क्या बोला? एनीथिंग इन इज पॉजिटिव, एनीथिंग आउट इज नेगेटिव.
तो क्योंकि यहाँ पे मेरा Q का वैल्यू पॉजिटिव आया, विच मीन्स दैट इस सिस्टम को एनर्जी इन हुआ या आउट हुआ, बताओ। करेक्ट, इस सिस्टम को एनर्जी जो है वो इन हुआ, ओके। एंड एनर्जी इन इज कॉल्ड एज एनर्जी प्रोवाइडेड और एनर्जी सप्लाइड, राइट। एनर्जी प्रोवाइडेड और एनर्जी सप्लाइड। अगर आउट होता तो हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज। सो इन दैट केस वी विल से दैट 240 जूल ऑफ एनर्जी, 240 जूल ऑफ एनर्जी was provided। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी को? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल देन। ओके, सो लेट्स से कि आपको क्या डेटा दिया हुआ है। लेट्स से U initial is equal to 300 joules, U final is equal to let's say 450 joules, Q is equal to let's say plus 200 joules, okay। अब W आपको बताना है, okay। Find W, okay। Also find if work was done on the system or by the system। So I have a variety of answers: 50 joule by the system, minus 150 by the system, 50 by the system। क्या आंसर आएगा बताओ? minus 50 by the system, क्या आएगा? okay, देखो, let's put all the values। so simply हमें यहाँ पे फर्स्ट यूज करना है, योर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। देखो बहुत ही डिफिकल्ट है ये। मेरा डेल्टा U क्या आएगा बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, इज इक्वल टू प्लस 150, ओके, प्लस 150 आएगा। सो डेल्टा U इज प्लस 150 विच इज इक्वल टू Q तो मुझे ऑलरेडी पॉजिटिव दे देगा, मुझे यहाँ पे सोचने की ही जरूरत नहीं है, which is equal to plus 200 plus W। अब अभी के लिए इसको as it is ही लिखो, बाद में जो साइन आएगा उससे मुझे पता चल जाएगा, ओके। सो यहाँ से मेरा W क्या आया? -50 आया, ओके। ना अब अगर मेरा यहाँ पे W का वैल्यू -50 आता है, which means that work is done, बताओ। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 जूल ऑफ वर्क is done by the system, ओके। नाउ यहाँ पे इससे पहले कि मैं आपको ये पर्टिकुलर पार्ट एक और बार एक्सप्लेन करूं, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम ने काम किया या उसको मिला, हम उसको दो तरीके से समझते हैं, ओके। द फर्स्ट मेथड इज बाय साइन, साइन मुझे ये बताता है कि वो बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है। सेकेंड इज बाय एक्चुअल वर्ड कि 50 बाय द सिस्टम, 50 ऑन द सिस्टम। कहने का देखो मतलब क्या है, लेट्स से आपने लेट्स से कुछ भी एक सेल करना स्टार्ट किया, ओके। लेट्स से यू हैव ओपनड अप अ बिजनेस, ओके। एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे कोई आके आपको पूछता है, ओके, कि व्हाट इज योर चेंज, ओके, कि आपने सुबह से लेके अभी तक आपने कितना चेंज किया। एंड लेट्स से इफ यू से +100, ओके। आपको किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने कितना कमाया या कितना गवाया,
आपको सिर्फ उसने ये पूछा कि अच्छा भाई सुबह से लेके अभी तक व्हाट इज योर चेंज। तो अगर आप उसको बोलते हो +100, सो इफेक्टिवली उसका मतलब क्या आता है बताओ? डिड यू अर्न और डिड यू लूज? करेक्ट, दैट वाज योर प्रॉफिट और दैट इज हाउ मच यू अर्नड। ओके, सो इन दैट केस आपको और अर्न या लॉस वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा। इन दैट केस द साइन इटसेल्फ वाज इनफ। यस और नो? ओके, और अगर यहीं पे आपको किसने पूछा कि अच्छा व्हाट इज योर चेंज, एंड अगर आप बताते -100, तो उसका मतलब क्या होता है बताओ? करेक्ट, उसका मतलब लॉस होता या मनी वुड हैव बीन आउट। समझ में आ रहा ना सभी को? ओके, नाउ चेंज द सिचुएशन। लेट्स से कि आपको किसी ने आके पूछा कि भाई आपने कितना अर्न किया। ओके, तब उस केस में आप क्या बोलते हैं? आप थोड़ा ना बोलते +50 बोलते हैं, आप तब तो आप सिर्फ 50 बोलते हैं। यस और नो? ओके, इफ समबडी हैड आस्क्ड यू अच्छा हाउ मच हैव यू अर्नड, तब आप बोलते 50। या अगर आपको आके कोई पूछता कि अच्छा हाउ मच हैव यू लॉस्ट, तो आप बोलते अच्छा 100। सो इन दैट केस ऑटोमेटिकली अब मुझे और साइन की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज लैंग्वेज एक्सप्लेन्स की एनर्जी इन हुआ या मनी इन हुआ या आउट हुआ। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, बट अब अगर आपको कोई आके पूछता है कि अच्छा हाउ मच डिड यू अर्न, एंड एट दैट पॉइंट इफ यू से -100, अब उसका मतलब क्या हो जाता है? करेक्ट, तो उसका मतलब जो है वो लॉस हो जाता है। ओके, नो दैट इज ओके इन केस ऑफ लैंग्वेज। ओके, या जनरल कॉन्वर्सेशन में वो चीज ओके है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में उसका मतलब एकदम उल्टा हो जाएगा। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में उसका मतलब कोई आदमी क्या समझेगा कि भाई वो कंफ्यूज हो गया और उसको साइन का किससे रिलेशन क्या है पता नहीं चल रहा है, कि भाई जब अर्निंग पूछा तो मुझे नेगेटिव क्यों बता रहा है। सेंस आपको समझ में है? सो इन मेनी बुक्स, इन मेनी क्वेश्चंस यू विल सी कि साइन कुछ और बोल रहा है, लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को हम भूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपली लात मारते हैं। एवरी क्वेश्चन दैट इज अ गुड क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द साइन एंड विद द लैंग्वेज। आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर की लैंग्वेज और साइन कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, सो डू नॉट ऑलवेज गो बाय द लैंग्वेज, ऑलवेज गो बाय द साइन। साइन आपको हमेशा एक्यूरेट चीज बताता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल कि आप क्या साइन एंड क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ओके, सो जब आप यहाँ पे बोल रहे हो लाइक आई जस्ट सॉ सम पीपल सेइंग कि -50 डन बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा ना। सेंस आप सभी को समझ में आया? ओके, सो आइदर यू से ओनली -50, तो इससे मैं समझ गया अच्छा ठीक है सिस्टम ने काम किया, या फिर आप ये बोलो 50 डन बाय द सिस्टम। इज दैट क्लियर? ओके, जब आप बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम बोलो, फिर आप और वहां पे साइन जो है वो यूज मत करो। ओके, समझ में आया सभी को? सो व्हेन यू से अर्न और लॉस, एट दैट केस डोंट यूज साइन एनी मोर। ओके, एंड दैट केस डोंट यूज साइन एनी मोर, या फिर तो आप सिंपली +-50 बोलो। ओके, दोनों में से कोई एक चीज बोलो, और अगर आप दोनों बोलो देन एटलीस्ट कीप इट कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली हाँ। तो यहाँ पे देखो आपका साइन जो है वो -50 आ गया। -50 से ही मुझे समझ में आ गया अच्छा वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो या तो यू ओनली राइट दिस मच। ओके, या तो यू ओनली राइट दिस मच, और यू राइट, अब देखो यहाँ पे मैंने और साइन नहीं लिखा है, और 50 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का ऑटोमेटिकली मतलब जो है वो मेरा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, एंड इसके अलावा ऑब्वियसली यू विल सी मेनी क्वेश्चंस एंड मेनी ऑप्शंस जो कि नेगेटिव का भी नेगेटिव करेगा। ओके, नेगेटिव का भी नेगेटिव करने का मतलब क्या है? इट विल टेल यू -50 ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, सो ऑब्वियसली देखो इसका और इसका इंटरप्रिटेशन तो सेम है, बट वी कैन नेवर बी श्योर कि अच्छा ये जो बोलना चाहता है उसको खुद को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली यू विल सी मेनी एग्जांपल्स एंड मेनी ऑप्शंस विद दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, बट ऐसे लैंग्वेज को आप कभी भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, और अगर आपको कभी क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि ऐसा लैंग्वेज हो, देन यू नीड टू कीप इन माइंड कि हो सकता है बेचारा क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ होगा, उसने ढंग से सेट नहीं किया। इज दैट क्लियर? Okay, so always keep it consistent. Now continuing, so यहाँ पे आप either सिर्फ ये बोलोगे और आप ये बोलोगे। Okay, don't mix them up कि -50 done by the system, don't mix it up. Now let's continue, let's take one more example question. Let's say अब चलो आप ही मुझे वैल्यू बताते जाओ। Q का वैल्यू क्या डालना है बताओ? Q का वैल्यू 80। Okay, so somebody just give me Q का वैल्यू 80। U इनिशियल का वैल्यू क्या डालना है बताओ? 600। Okay, U initial का value is let's say 600, U final का value is let's say 6
640. Okay, same question, sorry, same question. Find W. Okay, find work by the system on the system. Okay, try करो. एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. मैं इसको 700 कर रहा हूँ. ओके, मैं इसको 700 कर रहा हूँ. चलो, अगर आपने वो वाला सॉल्व कर दिया, ठीक है. अगर आपने चलो 640 वाला सॉल्व किया, कोई बात नहीं, 640 वाला भी आप कर लो. आप एक और भी डाल दो. ओके, आप एक और भी डाल दो. दिस इज केस ए, दिस इज केस बी. ओके, फिर आपने वही चीज लिखा, फिर आपने वही लिखा -40 बाय द सिस्टम. आइदर साइन और वर्ड्स. देखो, सो पहले हम देखो केस ए देखते हैं. सो पहले हम केस ए देखते हैं. सो केस ए में देखो मेरा क्या होगा, वेरी सिंपली, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्लियरली इज +40, विच इज इक्वल टू +80 प्लस डब्ल्यू. सो यहाँ से अगर मैं डब्ल्यू का वैल्यू निकालू तो क्या आ रहा है, -40 आ रहा है. ओके, -40 होने का मतलब क्या हुआ कि 40 जूल ऑफ वर्क, कि 40 joule of work is done by the system. Okay, 40 joule of work is done by the system. And case B में देखो क्या है, same चीज, delta U is equal to Q plus W. This is not 40, this is 100. Okay, यहाँ पे 100 है, is equal to 80 plus W. अब यहाँ पे मेरा W जो है वो +20 आ गया. Okay, यहाँ पे मेरा W जो है वो +20 आ गया. It means that 20 joule of work done. बताओ इसके आगे क्या लिखूं, ऑन या बाय. करेक्ट, डन ऑन द सिस्टम. इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप राइट हियर फॉर टुडे. ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. सो वी विल स्टॉप राइट हियर फॉर टुडे and we will continue right from here in the next class. Okay? That's it for today.